What a great fest. I know it's the second year. So for everybody who's organized the fest, ek zordar taliyan, because I know that it's grown from last time. And it's the need of the hour. When you talk about World Health and Wellness Fest, today when we see people do really, everybody works hard, everybody's trying to find their niche, find themselves, young, old, everybody's discovering themselves. The one thing that we need to focus on in a country like ours is wellness and health. It's very important. So I'm really happy that I'm here. Thank you so much. And all right, we heartily welcome you to Jaipur, to World Health Wellness Fest. Okay, so should I start with the session? Should I be nervous? Definitely not. Okay. All right. The first thing that comes to my mind, actually all of our mind, that is roadies, with your name and your passion for bikes, which interestingly, we have heard that you have an Indian bike. Is it? You have an Indian bike. Yeah, I do. I'll tell you about the Indian bike, but yes. Exactly. So I want you to ask about the same. Like, हमारी audience ये जानना चाहती है कि why did you make that and named it as Indian bike particularly? No. It's a bike company that I'm part of. It is an Indian company. The company is called Ultraviolet. It's a company based out of Bangalore. Boys, Indian boys, everything made, nothing imported from our neighbors. And it's an electric motorcycle, so it's good for when we talk about health and wellness and environment, it's also part of that. And I think like Royal Enfield, when you see Royal Enfield abroad, you're so proud that it's an Indian-made product used abroad. It fills my, chest with pride. And I have a feeling that Indian products are global level products. Today, the way they're getting designed, the tech behind it. So that is why I was part of this Indian bike company called Ultraviolet. Oh, interesting. Yes. And how your love for bikes started? My dad was in the army. He just retired a few years ago. And he was in the Rajputana Rifles. That's why my name, I'm Sikh, but my name instead of being Ranjit or Ranveer or Ranbir is very Rajasthani, because my dad was from the Rajputana Rifles, so it's Ran Vijay, which is a very Rajasthani name. Ye taaliyan mere mata pita ke liye. So, growing up, army mein so my dad was also used to ride a bike. My chacha was also in the army, he was riding a bike. But army mein एक सोल्जर भैया होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि वो एनफील्ड पे, ग्रीन एनफील्ड पे यूनिफॉर्म पहन के, वो हेलमेट लगा के पूरे दिन इधर से उधर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स लेके जाते थे. आई यूज्ड टू लुक एट हिम एंड यार कमाल की जॉब है यार, मोटरसाइकिल पूरा दिन चलाना और इसके मतलब दिस इज हिज जॉब. सो आई वाज फैसिनेटेड विद दैट एंड थ्रू आउट माई लाइफ आई सॉ people that I admired, army officers wearing their Ray-Bans, riding bikes, and then my chacha was in the ASC. अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी है, back in the 90s, he was the captain of the Tornadoes team. Interesting. 8 Enfields, 42 people, the guy climbing the ladder, saluting the president. So that was my chacha. So I was grown in, I was brought up in that daredevil atmosphere. So I loved bikes since then. Who wouldn't then? All right. So now that you have 2 beautiful daughters, do you think it is therapeutic? I mean, I have 1 daughter, 1 son. Oh, okay. My bad. Maybe. I wish there were 2 daughters. But okay. Don't tell my son. He's very young. So don't, like, बाद में जाके throwback Ran Vijay's video. He didn't love his son, mat karna. But I wish I had 2 daughters, yeah. All right. So do you think it is therapeutic to visit the places with your family? और जहाँ आप family के साथ घूम रहे हैं, how much Priyanka is involved with it? Like, does she like this, or she's happy to roam around with you? And how does she feel with it? ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगा ये सवालों के बाद. And I've seen your Instagram video as well. Like, you were riding bikes and tracking, and then suddenly it changed to with your family, and then. So it's beautiful. I think it's beautiful. So what do you think? Like? हाँ, तो सोशल मीडिया हम सब के लिए है. उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये हम पर डिपेंड करता है. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो हो रही है मेरे साथ लाइफ में. कुछ सालों पहले मैं एक पहाड़ पे, मेरे पे आग लगी है, पहाड़ से कूद रहा हूँ नदी में. वो उस टाइम पे मेरी लाइफ में चल रहा था, एडवेंचर्स में था, मेरे शोज ऐसे थे, ऐसी चीज़ें मैं कर रहा था, मोटो क्रॉस कर रहा था.
अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कोई फॉलो करता है या आपकी कोई इन्फ्लुएंस है अगर आपका, अगर वो देखे कि यार ये एक्चुअली मुझे इसके जैसा बनना है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मैं सुबह उठता हूँ तो एक बच्चे को उठाता हूँ, फिर उसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, फिर उसको उठाता हूँ, फिर किसी क्लास में लेके जाता हूँ। एक असली इंसान की जो जिंदगी होती है वो है। तो अगर आपको एस्पिरेशन भी करना है तो ये देखना चाहिए कि सिर्फ एकदम जहाज में घूमना वो नहीं है रियल लाइफ। सो द हैप्पीनेस इज कि मैं उनके साथ पार्क में जा रहा हूँ, बीच में जा रहा हूँ। जितना ज़्यादा वो नॉर्मलाइज किया जाए उतना ज़्यादा आपकी एस्पिरेशन में ना ऐसे फन्ने खां टाइप आइडियाज नहीं होते कि एक दिन मैं भी बनूंगा। करना तो आपको एज अ फादर नैपी चेंज करनी पड़ेगी। इट्स द नॉर्मल थिंग, ठीक है। एज अ फादर आपको उनके साथ, अगर मैं चाहता हूं मेरे बच्चे खूब फिट रहें फिजिकली, जब तक मैं उनके सामने नहीं लटकूंगा ना तब तक मेरे बच्चे नहीं लटकते। अब मेरा जो 15 महीने का 16 महीने का बेटा है, तो आई डोंट नो अगर आपको दिखा सकता हूँ मैं वीडियोस, बट मैं लटकता हूँ उसके सामने, कुछ पुलअप्स वुलअप्स करता हूँ तो वो ऐसे करता है हैंग हैंग, उसके भी शब्द सही नहीं। देन वो अभी 5-6 सेकंड के लिए लटक रहा है। मेरी बेटी 1-1.5 मिनट तक लटक जाती है, और फिर वो मंकी वो इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बोलता हूँ, वो मेरे को देखते हैं करते हुए। बिकॉज किड्स ना दे वांट टू डू जो उनके माता पिता करें। आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें, किताब खोल के बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद बच्चे आएंगे किताब खोल के बैठ जाएंगे। दे वांट टू बी लाइक द पेरेंट्स। उनके सामने आप पुशअप्स करोगे वो लेट जाएंगे, अजीब सी कुछ हरकत करेंगे, लेकिन उनको लग रहा है एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके सामने आप योगा मैट लगा के ऐसा करेंगे सिटअप्स, वो भी करने पड़ते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण मेरी लाइफ में, और उनको फिर मैं डिपिक्ट करता हूँ ताकि लोगों को ये ना बहुत आसान है कि अरे आप किसी को इंस्पायर कैसे करते हैं, बाय जस्ट शोइंग देम कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में संकट है, मेरा हाथ टूट गया, दिखा दो कि हाथ टूट गया। कि मैं भी अभी उम्र हो गई लेकिन हरकतें वही हैं, बाइक चलाना है, ये करना है, एडवेंचर्स करने हैं। हाथ टूट गया पर इसका मतलब ये नहीं है कि होप छोड़ दो, वर्कआउट मत करो, कुछ और पकड़ लो। सो व्हाट्स हैपनिंग ऑन माय सोशल मीडिया ये है कि अब जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं वो दिखाता हूँ। दैट इज़ वाई आपको लगता है कि अरे, तो अब मैंने एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मैं काम थोड़ा सा कम करूं। करना चाहता हूं मैं काफ़ी काम, मतलब बट मेरे बच्चे दोबारा 6 और 1.5 साल के दोबारा कभी नहीं होंगे, ठीक है। और जैसे ये 13, 14, 15 साल के होंगे, इनके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, इनके इंटरेस्ट, इनके पैशन, पियानो, बावर्ची बनना, कुछ भी बनना है ना, वो शुरू हो जाएगा। तब इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा डेफिनेटली। तो अभी कुछ 7-8 साल की बात है, 10 साल की। सो मेरे को अपने आप को अवेलेबल करना है उनके लिए। इसीलिए आप ज़्यादा अब वो देख रहे हैं कि हम लोग 1 साल कहीं ट्रैवल पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सब विदाउट मेन हेडक्वार्टर्स प्रियंका के बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं तो बोल देता हूँ कि अच्छा मैं अभी जयपुर में हूँ, कल परसों वापस घर आ रहा हूँ, चलो डेजर्ट चलते हैं। तो बोलना और वो सैंडविचेस तैयार होना और पानी की बॉटल्स तैयार होने में बहुत अंतर है। वो सब एडमिन, लॉजिस्टिक्स वो संभालती है। तो उसके बगैर मतलब आइडिया सिर्फ ऐसा एक बबल होता है और वो फट सकता है। वो असली होना एग्जीक्यूशन इज बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी रन्स अस आवर लाइफ एंड फुल कूडोज टू हर। पर दैट्स व्हाई यू सी लॉट ऑफ दोज वीडियोस, क्योंकि अभी हम लोग का कॉन्शियस एफर्ट है कि जब तक ये बच्चे निकल नहीं जाते अपनी अपनी राहों में, तब तक हम वी शुड बी अवेलेबल फॉर देम। माय फादर इज इन द आर्मी। वो फील्ड एरिया में होते थे, रजौरी, पुंछ, JNK में। वो 2 महीने के लिए आते थे, लेकिन वो 2 महीने में वो आदमी 24 घंटे ऐसे चौकन्ना। बच्चों ने ऐसे कुछ देख लिया तो खेलने भी जाएगा, हमारे को उठा के ट्रैकिंग के लिए भी, उसमें एक रोड ट्रिप भी जरूर होगा, दादा दादी को भी मिल लेंगे। वो 2 महीने में पूरे 1 साल का निचोड़ कर देते थे वो, क्योंकि उन चीज़ों की वजह से हम आज वो बने हैं। ऑल द टाइम दैट वी स्पेंड, पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन परवरिश टीचर्स और माता पिता घर पे होती है। तो जब वो सवाल किसी ने पूछा था ना कि कौन सी पिक्चर देखी हम कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, देखिए आप पिक्चर देखते हो उसमें जेम्स बॉन्ड है, देखा जेम्स बॉन्ड? एक बार ही तो देखा होगा। वो लोगों को मार रहा है जेम्स बॉन्ड। क्या इन्फ्लुएंस क्या होता है कि आप ऐसे थोड़ा ना कि सड़क पर जाके टेंडन जॉन इब्राहिम धूम में चोर है, बड़ा सही लग रहा है हायाबूसा, पर आप चोर थोड़ा ना बन जाएंगे। पिक्चर आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आपकी परवरिश, कि आपको पता है कि सही और गलत में क्या अंतर है,
वो होता है जब आप एक चीज देख रहे हैं एक सही उम्र पे। मेरे घर पे अंडर 13 का जो कंटेंट है वो मेरे बच्चे नहीं देख रहे, वो मेरा कंट्रोल है, मेरी जिम्मेदारी है, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोग बोलते हैं कि क्या आप अपने बच्चों को रोडीज देखने देंगे, क्या मेरे बच्चे रोडीज देखने की उम्र के हैं अभी? नहीं, जब होंगे तो देखेंगे। क्या वो सोशल मीडिया पे है? नहीं, सोशल मीडिया की एक उम्र है, आई थिंक इंस्टाग्राम पे कुछ 13 साल की है, तब होगा, राइट? सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स लोग ना दूसरों पे डालना चाहते हैं कि आपने ऐसी फिल्म बनाई उसकी वजह से मेरा बच्चा इसमें घुस गया। नहीं, आप पहली बार तो आपके बच्चे ने वो पिक्चर देखी क्यों? आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर? तो वही काम से टाइम ऑफ लो, क्योंकि जितने भी वेल्दी लोग हैं, हमारे साथ बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनके इंटरव्यूज देखो, उनके पॉडकास्ट देखो, उनसे बातें करो तो वो बोलेंगे यार बड़ा सक्सेसफुल हो गया हूँ मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई हूँ, तो काश मुझे पता होता और मैं अपने 30s और 40s में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती या कर पाता। तो अगर हम उनसे नहीं सीख सकते अभी, तो हम 50-60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, फिर हम भी बोलेंगे यार आई विश आई स्पेंड मोर टाइम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विद माई किड्स और दिस एंड दैट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ट्राई टू पुट all of that I'm saying into practice. So with the WHWF Fest, you're saying that mental health and fitness, both physical and mental, are really, really important. 100% And that what important. you do with your kids. There is no amount of success or admiration or wealth that you can enjoy if you're not healthy and if you're not mentally healthy or physically healthy. Lots of people who are doing extremely well, आपको दूर से दिखेगा वाओ वो बंदा अमेज़न का वाह कितने बिलियंस हैं, पर घर में प्रॉब्लम चल रही है यार। आपको पता है एक खराब रिलेशनशिप में बंदा कितना अपसेट रहता है। अभी यंग एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बाद में हस्बैंड वाइफ के बीच में एक डिवोर्स कितना। तो पैसे से मेंटल हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती। उसके लिए आपको यू हैव टू नो हु यू आर, यू हैव टू बी गुड इन कम्युनिकेशन। आपको अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से साफ साफ बोलना चाहिए यार मुझे ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, मुझे ये करना है। खुद की वैल्यू होनी चाहिए। खुद की वैल्यू तभी आएगी, पैसे से नहीं आएगी, जब आपको पता है कि यार आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, मैंने बहुत ज़्यादा पियानो चला है। खुद की सेल्फ वर्थ। और अगर खुद के साथ आप खुश हो तो बाहर आप खुशी दे सकते हो। चाहे आपके आसपास नेगेटिविटी भी हो, आप वो बदल सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे क्योंकि मेरे आसपास डिप्रेसिव लोग हैं तो मैं भी डिप्रेस हो जाता हूं, फिर वो आप यू लुकिंग एट आंसर्स आउटसाइड। आपको आंसर अंदर ढूंढना है। हाउ कैन आई मेक दिस बेटर? अगर ये लोग हैं और ऐसे हैं तो मैं भागता हूं, मैं भागूंगा, मेरे को देख के ये भागेंगे, तो शायद मैं एक परिवर्तन ला सकता हूं। I'll move forward with my question.